आप अपनी स्क्रीन पर बहरहाल देख रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के नतीजों के बाद रामदेव अग्रवाल जी को शानदार सेट ऑफ नंबर्स मोतीलाल ओसवाल ने पेश किया। आइए सुनते हैं रामदेव जी का क्या कहना है नंबर्स के बाद। We started this year with about 32 crores. I would think that the next quarter and quarters thereafter would be bigger than this, because this quarter is made up of only 2.5 months kind of thing. So we hope that if this kind of momentum is maintained, we could see a little better number from all the operating businesses. One thing which is there is that we have in this particular business the treasury portion of about 250 crores. We used to deploy in the fixed income, but we decided to switch the track, and we have deployed in equity markets by buying our own products from AMC, and that has led to actually depression in the number for declared number for this quarter to some extent, because the unbooked profit of about 30 crores in the portfolio has remained gone to the balance sheet and not come to the P&L. So as we move forward, we'll see a little more results coming from there. Business-wise, broking has done reasonably well. The volumes have picked up to almost the peak levels. The yield has started looking up because the mix of the turnover is heading towards cash volume, and so the yield has moved up from roughly 3.9 bits to 4.3. So that's almost a 10% move. So that's what is going to change as we move forward into the bull market. We are going to see the mix changing to cash volume, and which is almost 60-70% of our revenues. So that's where I think we'll see some more traction. One side the volume will grow, and second is the yield on the volume will grow. So we are going to see some accelerated growth in the revenue pickup there. Business-wise, our asset management businesses did well in terms of collection of assets, and though AMC remained underwater for the quarter, we hope that we'll break even in the next quarter, and thereafter we'll make some money. But right now in this quarter it was loss-making. iBanking did very well, but again from a very small base. So on the whole, businesses are looking good. We have started the second quarter well, and we hope that this may turn out to be, if not a record year, very close to a record year. Thank you. साउंड कर रहे हैं यहाँ पर रामदेव अग्रवाल, वो कहते हुए कि ये पूरा साल ब्रोकिंग इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। तो और हमने देखा कि इसकी जो शुरुआत है यानी पहली क्वार्टर से ही हो चुकी है। आप देखिए करीब 12.5 करोड़ रुपए से बढ़कर मुनाफा 32 करोड़ रुपए रहा। टोटल इनकम भी देखिए 119 करोड़ से बढ़कर 162 करोड़ निकल कर आई। तो शानदार सेट ऑफ नंबर्स मोतीलाल ओसवाल की तरफ से मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से निकल कर आए हैं। और आज हम ज्यादा तेजी नहीं देख रहे हैं इस शेयर में, लेकिन एक अच्छी खासी रैली इस स्टॉक में देखी जा चुकी है। आज जरूर ये शेयर बिल्कुल फ्लैटिश सा इस समय ट्रेड करता हुआ, लेकिन जिस तरह से काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं यहाँ पर गौरांग, चार्ट्स पर कैसा लगता है, माफ कीजिएगा राकेश, चार्ट्स पर कैसा लगता है ये स्टॉक आपको मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का, और क्या सलाह होगी आपकी यहाँ पे? तो चार्ट्स देखें तो चार्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है। स्टॉक ने एक बड़ा ब्रेकआउट 220 के स्तरों के ऊपर लिया था, और उसके बाद स्टॉक ने दोबारा कंसोलिडेट करके 235 236 के ऊपर दोबारा से लिया है। और अगर आप देखें थोड़ी देर पहले स्टॉक तो 235 236 के अराउंड ही ट्रेड कर रहा था। मेरा ऐसा मानना है स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग बाय है इन स्तरों पर। स्टॉक ने एक अच्छे से कंसोलिडेट करा है ऊपरी स्तरों पर, उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है 236 के ऊपर। मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर किसी भी गिरावट में स्टॉक को खरीदा जा सकता है। 225 226 स्टॉक का एक अच्छा बेस है, और मेरा ऐसा मानना है 280 से लेकर 285 के स्तर ऊपर में शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, तो तेजी का कैंडिडेट है यहाँ पर, लॉन्ग साइड की पोजीशन सब बना सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए इस शेयर में। ये राय निकल कर आती हुई राकेश की तरफ से। वक्त हो गया फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और बाजार का हाल भी आपको बता दूं, ऊपरी स्तर से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। शुरुआती तेजी में हमने देखा था सेंसेक्स ने डबल सेंचुरी मारी थी और अब 100 अंक के ऊपर रह गया, यानी ऊपर से करीब 100 पॉइंट का हल्का हो चुका है बाजार। निफ्टी पर भी नजर डालिए, 7700 के नीचे इस समय कारोबार हो रहा है, मात्र 25 अंक की बढ़त ही बची है। निफ्टी में मिड कैप इंडेक्स हालांकि
कमान संभालती हुई करीब आधे % से ज्यादा की थोड़ी सी बढ़त यहाँ देखने को मिल रही है। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं और आपको बताते हैं कि आपके शेयरों में आपको क्या करना चाहिए।